Yeah. Hello everyone. I, on behalf of Nitya Darpan Kala Academy, welcome you for yet another episode of Parnika. Today, Mr. Prakash Wadekar is going to join us. Mr. Prakash Wadekar has worked with n number of things. He has worked on n number of things. He himself is a tabla player. Plus, he is a event organizer, event manager, and along with that he has scripted. He is also a writer. He has scripted for many successful TV shows such as The Golden Era with Annu Kapoor, then Gazab Desh Ki Ajab Kahaniyan. And along with that, he has also worked with many successful singers. So just to name a few, such as Kailash Kher, Suresh Wadkar ji, then Aarti Anklekar Tikekar, and Anuradha Podwal ji. So these are just the few names along with whom he has worked. He has also worked with our present CM, that is Uddhav ji Thackeray. He has also worked with him. He has hosted many of the programs for him. So let's welcome him. And it is said, a very famous philosopher has said, कि music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. So that is the impact of music on our life. So let's welcome a musician. He has spent many of his years in this industry. Along with that, he has, just a moment, I'll add him. He'll be here with us any moment. Yeah, he's there. He's joining us. He's joining us just a few minutes. Yeah. Yeah, hi. Hello, You're, hello, Amit. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. You're able How to are hear? you? Yeah. Yeah, okay. So I have to given you introduction. I have given you introduction already. पण तुम्ही पण स्वतःबद्दल काहीतरी आमच्या ऑडियन्सना सांगा. माझ्याबद्दल काय सांगितलं ते आधी ऐकलं नाही मी. Anyway, hello everybody. This is Prakash Wadekar. I'm a writer, musician, and anchor and live show organizer. आणि मराठीत बोलू की हिंदीत बोलू? It's no language barrier, any language. बेसिकली मैं तबला प्लेयर हूँ, बहुत से काम करता हूँ, मैं राइटर भी हूँ और मैंने कई टीवी शोज लिखे हैं और एंकरिंग भी करता हूँ और इंटरनेशनल शो ऑर्गेनाइज भी करता हूँ. बट माय फर्स्ट लव इज तबला एंड तबला मेरा सोल है. तो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज अ तबला प्लेयर एंड म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइजर. राइटिंग वाइटिंग तो ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन काम है दैट इज तबला एंड म्यूजिक. So you can start your questions, or I'll be happy to answer your questions. Yeah, we are going to definitely ask you many questions regarding your passion and also the work that you're doing. Recently, you are कर रहे हो on Facebook. So that is also Yeah. one of the important thing. So we are going to come to that. But first of all, tell us about your journey. How your journey started in this industry. How you came in this industry. मैं शुरू से बताना चाहता हूँ कि मैं रहता था अंधेरी डीएन नगर में और मेरे पिताजी पंडित बापू वाडेकर जी मुंबई के सबसे पुराने तबला मेकर्स में से एक थे. तो हमारी तबले की दुकान थी और हमारे घर पे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब जिन्होंने मधुबन में राधिका और ये सारे गाने बजाए, वो, और शराफत भाई जो साजिद वाजिद के पिताजी है जिन्होंने काफी दिल चीज क्या है ये गाना भी उन्होंने बजाए थे, और पंडित सामता प्रसाद जी, ऐसे लोग आया करते थे. बचपन से उनको मैं सुनता था और मैं ऐसे ही बजाने की कोशिश करता था. तो मेरा बड़ा भाई था उमेश वाडेकर, उसने मुझे तबले पे हाथ रखना सिखाया था. फिर उसके बाद में मैंने मेरे पिताजी के पास सीखा. फिर उसके बाद पंडित आनंद बदामेकर जी के पास मैंने 2 महीने सीखा. तो उसके बाद मेरा शुरू हुआ तबला बजाना अचानक. मतलब 7th स्टैंडर्ड तक जब मैं आया तब
था कि मैं बजा सकता हूँ, और 7th स्टैंडर्ड के बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो उसके बाद पंडित पांडुरंग सालुंके जी से मैंने करीबन 6-7 साल सीखा। उसके बाद पंडित वसंतराव गुटकर जी के पास मैंने 15-20 साल तबला सीखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग सुनने लगे, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि प्रकाश वाडेकर, वो लोग कहते थे, मैं तो नहीं कहता हूँ कि अच्छा बजा रहे हैं, तो मुझे धीरे धीरे गजल्स में बजाना मैंने शुरू किया, और फिर ऐसी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में कई प्लेबैक सिंगर्स के साथ मैं बजा रहा हूँ, और आगे भी बजाऊंगा भगवान ने चाहा तो। Yes. ऐसी शुरुआत हुई है। Okay, that means tabla is in your blood. Is in your Yes, yes, yes. Yes, tabla is in your blood. So now that we talk about tabla, जब हम लोग बात करते हैं तबला के बारे में, तो we know it's an instrument जो हिंदुस्तानी के साथ जाता है. But tell us in depth about तबला. तबला जैसे other classical forms है, उनके जैसे घराने होते, तो are there घरानाज in तबला also? उसके बारे में हमको जरा ज्यादा जानकारी दीजिए। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ कि तबले के घराने से पहले तबला क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। कि जैसे हमारी लाइफ में हमारी सांसें चलती है, उसका एक रिदम होता है, और हमारी जो ये पृथ्वी है वो भी एक पर्टिकुलर लय में घूम रही है। उसकी लय बिगड़ जाए तो प्रलय हो जाता है। वैसे रिदम जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में, रिदम जो है वो सबसे पहला जिसका मान है, सम्मान है। ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा बेसुरा चल जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल में कहावत है कि थोड़ा सा बेसुरा चल जाता है, लेकिन बेताला बिल्कुल नहीं चलता। इसीलिए जब ताल की बात आती है तो ताल में हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत, जैसे उत्तर हिंदुस्तानी की बात करेंगे आप, मैं साउथ और यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर हिंदुस्तानी क्लासिकल जो ज्यादा प्रचलित है उसकी अगर बात करेंगे तो तबला हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का बेस है, और बेस रिदम है। तबले से ही सबकी शुरुआत होती है। जितने भी बड़े बड़े जैसे पंडित अजय चक्रवर्ती जी की भी बात करेंगे तो उन्होंने गाना सीखने से पहले तबला सीखा। ऐसे बहुत से पुराने लोग थे जो ख्याल संगीत या फिर गायकी सीखते थे, उसके पहले तबला वो लोग सीखते। तो ये तबले का महत्व है। और तबले की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में रिदम इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिक रिदम इंस्ट्रूमेंट हमारे देश का, वो मृदंग है। और मृदंग को थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए, मृदंग के 2 भाग किए। अमीर खुसरो जी जो शायर थे उन्होंने उसके 2 भाग किए, और वो 2 भाग बाद में ज्यादा प्रचलित हुए। उसका नाम है तबला। तो तबले की स्टोरी ये है, तबला बहुत ज्यादा पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 600-700 साल से चला आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का भी वो बेस है। और अमीर खुसरो जी ने तबले का इन्वेंशन किया, और तबला बहुत ही जरूरी है संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में। तबले में घराने के बारे में बताइए ना, लाइक व्हाट ऑल घराना तबले में हाँ, तबले में घराने है। एक तो फर्रुखाबाद घराना है जिसे पूरब के हाथ से बजाते हैं, और दूसरा दिल्ली घराना है, और पंजाब घराना है। जाकिर भाई और उस्ताद अल्लाह रखा साहब ये सब दिल्ली घराने का और पंजाब घराने का तबला बजाते हैं। और उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब और उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब और उस्ताद थिरकवा खान साहब, इन्हें फर्रुखाबाद घराने के खलीफा कहा जाता है। खलीफा मीन्स टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है किसी भी घराने में तबले की, तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन उनकी होती है। तो फर्रुखाबाद घराना है इनका। और मेरे गुरुजी पंडित पांडुरंग सालुंके उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब के सबसे खास शागिर्द थे। तो उनसे मुझे पता चला कि ये जो घराने होते हैं, जैसे हाथ घराने का, दिल्ली घराने का हाथ अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से बचता है वो, और टिप जो फिंगर का होता है उससे बचता है, और उसे दिल्ली घराना या पंजाब घराने का हाथ कहते हैं। और पूरब का जो हाथ है फर्रुखाबाद घराने का, उसे पूरा पाम इस्तेमाल करके पखावज अंग से बचता है। तो ये फर्क है अजराड़ा घराना और दिल्ली घराना और पंजाब घराना, बनारस घराना, ये सारे घराने हैं तबले में। तो हर एक की अलग खासियत है, हर एक का अलग चलन है, हर एक का अलग अंग है। ओके, वी हैव सीन, मतलब जैसे आपने बोला कि हिंदुस्तानी में तबला आता है, एंड कर्नाटकी में वी मोस्टली हैव मृदंग। जब भी हम लोग परफॉर्म भी करते हैं तो कर्नाटकी में वी हैव मृदंग। तो मेनी ऑफ द टाइम्स कथक बेस्ड या
हिंदुस्तानी बेस्ड डांसिंग होती है तो वहां पे तबले को बहुत इंपॉर्टेंस होता है एंड तबले की बीट्स पे ही दैट डांस इज मेजोरिटी ऑफ द टाइम कोरियोग्राफ. सो आई वांट टू नो कि जैसे अपने कंपोजिशन के भी बारे में बोला कि कंपोजिशन या सिंगिंग सीखने से पहले भी उन्होंने तबला सीखा था. तो एग्जैक्टली हाउ तबला हेल्प्स, मतलब अगर मेरे को सिंगिंग सीखना है या हिंदुस्तानी सिंगिंग या कंपोजिशन दैट इज द लिरिक्स और सॉन्ग को कंपोज करना है, द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग, तो हाउ तबला हेल्प्स. एंड आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको भी जब भी सॉन्ग्स या आप खुद भी गाते भी हो तो हाउ तबला हेल्प्स यू इन दैट? जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल या संगीत है या फिर सुगम संगीत है या सेमी क्लासिकल है, तबला सबका बेस है। ताल सबसे पहले आता है, ताल के बाद ही सब कुछ आता है। तो ताल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंपोज कर रहे हैं, कोई भी गाना कंपोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में गाने की धुन के साथ साथ उसका रिदम आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एडलिब में सारे गाने नहीं, बहुत मतलब जितने भी गाने हो उसमें से 1% गाने होंगे, लेकिन सारे जितने भी गाने हो वो किसी न किसी रिदम में ही बनते हैं। तो वो रिदम और ताल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए तबले का बहुत बड़ा महत्व है कि तबला सबका बेस है और तबला आना ही चाहिए। मतलब तबला आना जरूरी है, लेकिन तबले का नॉलेज और तालों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी कंपोजिशन करते हैं, या तो ये दादरे में होती है, या कैरवे में होती है, या रूपक में होगी, या जपताल में होगी, या दीपचंदी में होगी, या ये जो सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूजिक की ये जो ताल है, दादरा, केरवा, दीपचंदी, रूपक, तो बेसिक इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनका चलन कैसे होता है, इनका डिवाइडेशन कैसे होता है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप अच्छी तरह से कंपोज कर सकते हो। या फिर डांस की भी बात करें तो डांस में तो आप खुद एक अच्छी भरतनाट्यम डांसर हो और कथक भी जानती हो, तो पता ही है कि तबला तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और कथक और इनकी बात आएगी भरतनाट्यम की, तो पढ़न करना बहुत जरूरी है। जैसे धगे 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 धा गधा गधा धन 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 गधा 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 गधा। तो जब तक ये बोल आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बोल नहीं बैठेंगे, तब तक आप वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए ये दो प्रोफेशन के लिए तो तबला बहुत ही जरूरी है, और कंपोजिंग के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो इज दैट कि आपने तबला सीखा है, तो तबला सीखने के बाद, सिंस आपने बोला कि तबला इज अ वेरी एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इज इट कि अगर मैं तबला सीखूंगी तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे हाथ मेरा इजीली पकड़ में आ सकता है? ऐसा कोई एडवांटेज? है। एक्चुअली ये सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि अलग वे में, कि लोग ऐसा कहते हैं कि तबला बजाने के बाद सब कुछ आ जाता है। ये मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि तबला बजाने से सब कुछ बजाना आ जाता है, ये मानना गलत है। तबला बजाने से रिदम का एक बहुत सुपर नॉलेज हमको आ जाता है कि क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है, या फिर तबले में जो काउंटिंग होती है, तबले के जो बोल होते हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी रिदम इंस्ट्रूमेंट के इतने डिटेलिंग बोल आप नहीं करते। जैसे हमारे तबला हम लोग लेंगे तो ना, तीन, धुन, त, ती, ट, ड, न, के, कत, ऐसे अलग अलग बोल है, और इनका सबका साथ में मिलके एक अलग अलग वेरिएशन होता है। ना और गे मिलके धा होता है, ता और गे मिलके धा होता है, तीन और घे मिलके थिन होता है, थुन होता है। ये हमारे यहाँ पे हमारे जो जितने भी पुराने लोग हैं, उन्होंने इतना जबरदस्त इसका डिटेलिंग किया है। उतना डिटेलिंग और वर्ल्ड में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, सिर्फ इंडियन इंस्ट्रूमेंट का ये पढ़ा हुआ जो, और उसी से सारे ताल इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे निकले। लेकिन जैसे आप ड्रम की बात करोगे तो आप बोलोगे कि तबला बजाने वाला ड्रम अच्छी तरह से बजा सकता है, पर इस बात को मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूँ। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जेम्बे बजाते हैं। जेम्बे आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है, सभी लोग जेम्बे बजाते हैं। लेकिन जेम्बे, देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो किसी न किसी कंट्री से, किसी न किसी देश से, किसी न किसी जगह से जुड़ा होता है। उसका एसेंस उसमें आता है, उस कंट्री का बैकग्राउंड आता है, उस वहाँ के लोगों ने जो बनाया है उनका एसेंस आता है। तो हम जेम्बे लेके उस पर सिर्फ तबला सोलो बजाएंगे और जेम्बे का जो ओरिजिनल बाज है उसे छोड़ देंगे, तो वो जिस आदमी ने वो इंस्ट्रूमेंट को बनाया है, जिस कंट्री का वो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ओरिजिनलिटी के साथ इनजस्टिस है। इसीलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाओ, तबले का नॉलेज आने के बाद बहुत इजी हो जाता है। मैं आ जाता है ऐसे नहीं कहता हूँ, तबले का नॉलेज आने के बाद ये सारी चीजें बजाना इजी हो जाता है।
लेकिन ड्रम के ऊपर, बोंगो के ऊपर और जेम्बे के ऊपर तबला 4-4 घंटे बजाना, ये मैं सही नहीं मानता। इसलिए ये जो क्वेश्चन है कि तबला सीखने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट इजीली आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तबला सीखने के बाद आप ढोलक इजीली बजा सकते हो, पखाव इजीली बजा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ड्रम, बोंगो, कोंगा और जेम्बे इजीली बजा पाओगे। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक ओरिजिनलिटी, अपना एक जगह है और उनका एक बजाने का तरीका है। तो वो सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सुन के बहुत सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उस इंस्ट्रूमेंट के साथ इनजस्टिस है। अभी आपने जो पॉइंट बोला ना सर कि मेनी ऑफ द टाइम्स एंड दिस इज हैपनिंग इन ऑल द फॉर्म्स, दैट इज वेदर इट्स डांस, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स सिंगिंग, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप किया जाता है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द थिंग। पीपल स्टार्ट मिक्सिंग इट। तो ये कहाँ तक सही है? दैट इज जो उसका बेसिक एसेंस होता है, द ओरिजिनलिटी होता है, इट गेट लॉस्ट इन दैट। तो वो कहाँ तक सही है? आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जो स्टूडेंट सीख भी रहे उनको भी, एंड हु ऑल आर डूइंग दिस थिंग, आई डोंट नो, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? वो कहाँ तक सही है ये मैं बता सकता हूँ। वो किसी हद तक सही है। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ। या यू आर, वो वी आर एबल टू हाँ, किस हियर। हद तक सही है? क्या है, आप हेलो। अमीर खुसरो जी ने बजाया तबला। हेलो। हेलो। हाँ, तो तबला जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजा है, धा तेरे गिट तक धा तेरे गिट तक तेरे गिट तक धा तेरे गिट तक, या तेरे गिट तक धा तेरे गिट तक, ये हमारे बोल है ना। धा गिन नगत तगिन नगत गिट गिट तक गिट गिट नगत 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 तगिन नगत गिट गिट तक गिट गिट धा तगिट धा तगिट गिट तक गिट धा। तो ये तबले के बोल है। अब ये तबले के बोल में ड्रम में बजाने लग जाओ तो चलेगा, 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 ये मैं तबले में बजाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ड्रम में 4-4 घंटे तक तबले के बोल बजाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिनलिटी के साथ हमको बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है मालूम है, आजकल क्या हो रहा है, जो तबला प्लेयर्स है वो लोग आजकल, जमाना जो है गिमिक्स का जमाना है, गिमिक्स। आज तबला प्लेयर जब तक बाल बड़े नहीं करेगा और वो कुर्ता नहीं पहनेगा, है ना, तब तक उसको तबला प्लेयर का वो फील नहीं आता है, लोगों को भी, है ना। बाल हिलाना और ये जो कि देखिए प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन अनिंदो चटर्जी को आप देखेंगे, पंडित अनिंदो चटर्जी, जिनका हम कान पकड़ के नाम लेते हैं, उनको आप देखेंगे तो बहुत सिंपल वे में बजाते हैं, कोई नाटक नहीं होता है उनका, कोई वो बाल नहीं हिलाते, लेकिन फिर भी वो लेजेंड है। लेकिन आजकल क्या है, गिमिक्स का जमाना है। आजकल बहुत लोगों की वजह से यंग जनरेशन के म्यूजिशियंस जो है, तबला प्लेयर्स है, उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं। अभी मैं एक किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास तबला सीख रहा है। लेकिन अभी क्या है, तबला उसने पूरी तरह से सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो तबले के सारे बोल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे बजाता है, जो कि अच्छी बात है। और आज जमाना जो है वो गिमिक्स का है। लेकिन क्या है, किसी और को देख के हमारा जो बेसिक जो पहले सीखना है उसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। पहले अगर आप तबला सीख रहे हो तो तबले का बहुत अच्छा नॉलेज लीजिए, बहुत अच्छा रियाज कीजिए। जो चीजें आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे बजाने वाले हो ना, तबले की, कदा रहता तो ये जो तबले की चीज है, वो आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में बजाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बजाइए, क्योंकि फ्यूजन अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, वो चीजें उस इंस्ट्रूमेंट पे बजाने से पहले वो सारी चीजें तबले पे बजाओ, क्योंकि वो तबले की चीजें है ना। तो उनको तबले पे बजाओ और तबले पे बजाने की योग्यता हासिल करो, उसके बाद में बजाओ, तो लोग आपको थोड़ा सीरियसली लेंगे और फिर वो फ्यूजन को फ्यूजन माना जाएगा। अदरवाइज वो कंफ्यूजन है किसी एक कल्चर के साथ और किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो अगेन वन मोर क्वेश्चन कि मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 1-2 साल सीखते हैं, देन दे स्टार्ट विद देयर ओन क्लासेस या किसी को सिखाने लग जाते हैं। तो व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? कितना सही है?
लाइक ये चीज करना? ये चीज एक्चुअली मुझसे पूछे तो फ्रैंकली बहुत ही गलत चीज है कि खुद सीख मतलब देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो किसी डिग्री से या विशारद करने से आपको आता नहीं है। तो विशारद करना, थियरी याद करना, ये चीज जो है वो ठीक है कि आपको किसी म्यूनिसिपल स्कूल में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर की आपको नौकरी करनी है तो आप वहाँ पे ग्रुप सिंगिंग करने के लिए या फिर कंपटीशन में पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने के लिए कंपोज करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसी को जब आप सिखाते हैं कि मैं ये तबला सिखाऊंगा या मैं कथक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, तो बहुत बड़ी चीज होती है वो, क्योंकि आपको कई साल उसको देने के बाद आपको उसकी योग्यता आती है कि भाई मैं ये सिखा सकता हूँ। जैसे आज मैं सिखा रहा हूँ, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स है वो सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं और मैं प्रोफेशनल तबला प्लेइंग की ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन मैं उसमें ये नहीं कहता हूँ कि मैं क्लासिकल सिखाता हूँ। जबकि क्लासिकल मैंने 20 साल सीखा हुआ है, 25 साल सीखा हुआ है, मैं वो भी सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं फिलहाल नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। लेकिन आज गजल में, फिल्मी गानों में ये बहुत बड़ा फील्ड है। जितना मुश्किल हिंदुस्तानी क्लासिकल है उतना ही मुश्किल लाइट म्यूजिक बजाना भी है, और वो मैं 25 साल से एज अ प्रोफेशनली बजा रहा हूँ। और 25 साल बजाने के बाद आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत। तो 2 महीने आपके पास कोई डांस सीखे या 4 साल कोई तबला सीख के क्लास शुरू कर दे, ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। ऑन दिस नोट ना, इवन आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट कि मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि पहले प्रीवियस एपिसोड में भी वी हैव डिस्कस, जब भरतनाट्यम डांसर के एक एक्सपोनेंट आए थे, कि दिस इज हैपनिंग विद ऑल द क्लासिकल फील्ड्स। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, कि मेनी ऑफ द टाइम्स 3-4 साल सीखने के बाद दे स्टार्ट विथ देयर ओन क्लासेस, एंड जो बच्चे होते हैं ना वो कुछ सीख नहीं पाते, एंड व्हेन दे कम टू अस और क्लास चेंज जब करते हैं कहीं कहीं से पता चलने के बाद, तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे को पता चलता है कि अरे मैंने जो 4-5 साल गवाए वो वेस्ट थे। तो उनका मेंटेलिटी भी बहुत हाई ये हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग जो आपने बोला कि, एंड सच अ ब्यूटिफुली यू हैव एक्सप्लेन कि 25 years इन दिस लाइन एंड येट यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर लर्निंग ईच डे। तो दिस टेंडेंसी इन द प्रेजेंट जनरेशन, ये टेंडेंसी कितनी कम हुई है टू लर्न देखिए, पहली बात मतलब क्या है, पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम किसी अपने बच्चे को कहीं पे सीखने के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले तो जिसके पास हम सीखने के लिए भेज रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक होना बहुत जरूरी है कि वो गुरु कितने साल से इस इंडस्ट्री में है। अगर कोई तबला सिखा रहा है तो वो खुद बजाता है क्या, खुद उनमें बजाने की योग्यता है या फिर उनको नॉलेज है, या फिर उनके कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत नाम है, या फिर जो खुद परफॉर्मर है। ये सब देखना बहुत जरूरी है और वो देखने के बाद ही उनके पास सीखने भेजना चाहिए। अदरवाइज किसी को, पेरेंट्स को तो पता नहीं होता कि सामने वाला जो सिखाने वाला वो कितना पानी में है। तो ये ऐसे होता ही रहेगा। लोग फीस के लिए सिखाते हैं, विद्या देने के लिए तो सिखाते नहीं है। 6 महीने की फीस पहले ले लेते हैं। तो एक्चुअली संगीत गुरु शिष्य परंपरा में सीखने वाली चीज है, लेकिन वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज के जमाने में, क्योंकि सब लोगों को प्रोफेशनली सीखना नहीं होता है, किसी को हॉबी के लिए भी सीखना होता है। लेकिन हॉबी के लिए भी सीखने के लिए भी किसी को इस तरह से सिखाना मैं गलत समझता हूँ। जो अच्छा सिखा सकते हैं उन्होंने ही सिखाना चाहिए। ओके, नाउ सर, कमिंग टू अनदर पॉइंट कि व्हेन वी से तबला, तब हमारे सामने, सबके सामने एक फिगर आता है, दैट इज जाकिर हुसैन सर। तो आर देयर मेनी अदर पर्सनालिटीज इन दिस फील्ड जो उनके इतने उस्ताद है लेकिन लाइमलाइट में नहीं है या उतने फेमस नहीं है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जाकिर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को तो सभी लोग जानते हैं, और उनके पास सिर्फ बजाना ही नहीं है, बजाने के साथ साथ बजाना तो उनका कमाल ही है। उनके जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा इतना तैयार बजाते हैं, और उन्होंने हर चीज को प्रूव किया है। जाकिर हुसैन जी ने ऐसा नहीं किया सिर्फ गिमिक सीखी, उन्होंने तबले को एक अलग जगह पे जाके रख दिया इंटरनेशनली। और
तबले की पहचान वो बन गए हैं। मतलब हिंदुस्तान का तबले का अगर नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है जाकिर हुसैन साहब का, और वो उतने डिजर्विंग भी है। मतलब उसमें कोई शक ही नहीं कि जाकिर भाई नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नंबर 1 तो म्यूजिक में कोई होता नहीं, लेकिन मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने तबले को इंटरनेशनल लेवल पे देखे गए। लेकिन उतना ही अच्छा बजाने वाले बहुत लोग हैं। उनमें से पंडित आनंद चटर्जी जी है, बहुत कमाल बजाते हैं। और पंडित नयन घोष हैं, जो निखिल घोष जी उनके पिताजी और आमिर हुसैन खान साहब के शागिर्द थे उनके पिताजी नयन घोष जी बहुत ही कमाल बजाते हैं। और इतनी ही अच्छी सितार भी बजाते हैं और उतना ही तैयार तबला बजाते हैं। और पूरब के हाथ से इतना तैयार बजाना बहुत कम लोग बजाते हैं जितना नयन दा बजाते हैं। और उसी के साथ साथ विभव नागेशकर जी हैं, पंडितनाथ नागेशकर जी के जो सुपुत्र हैं, वो भी फर्रुखाबाद घराने का तबला बजाते हैं, वो भी कमाल बजाते हैं। उसके बाद कुमार घोष जी है, बहुत ही विकट तबला है उनका। और यंग जनरेशन में अगर बात करेंगे तो सत्यजीत तलवलकर बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत मीठा बजाते हैं। फिर बाकी सारे नाम तो आपको पता ही है, लेकिन ये लोग भी उतना ही तैयार बजाते हैं। तो ये सारे नाम हैं। जाकिर हुसैन जी को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये नाम भी है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी को प्रोफेशनली तबला करना है या इस इंडस्ट्री में एज अ तबला प्लेयर एस्टैब्लिश होना है, तो व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस, सबसे पहली बात, मतलब अगर किसी को तबला प्रोफेशनली बजाना है तो उसको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है जब वो शुरू करता है। क्योंकि प्रोफेशनली तबला शुरू करने का ख्याल उसी आदमी के दिमाग में आता है जो ऑलरेडी 10 साल से तबला सीख रहा है या बजा रहा है। उसी के बाद प्रोफेशनली उसको बजाने का ख्याल आएगा। अदरवाइज 2 साल सीख के कोई प्रोफेशनल तबला प्लेयर बन नहीं सकता। तो जब उसे तबला प्लेयर प्रोफेशनली बनने का सबसे पहले ख्याल जब उसके दिमाग में आता है तो उसको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि उसे प्रोफेशनली तबला प्लेयर क्या करना है। मतलब उसे सोलो परफॉर्मेंस करने हैं, या उसे साथ संगत करनी है क्लासिकल में, या उसे लाइट म्यूजिक बजाना है। तो ये सवाल उसे अपने आप से करना जरूरी है। अगर वो सवाल करता है कि उसे क्लासिकल बजाना है, तो मैं एक बात बताता हूँ कि क्लासिकल सोलो कंसर्ट करने के लिए आपको 12-12, 14-14 घंटे रियाज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कमर्शियल अगर देखा जाएगा तो क्लासिकल आपको सोलो प्लेयर बनना है तो आप उससे, सभी लोग इतनी योग्यता नहीं रखते कि क्लासिकल सोलो तबला प्लेइंग करके अपना घर चलाए और बैंक के इंस्टॉलमेंट्स भरे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। वो सब हो सकता है, तबला बजा के ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने भी की है, मैंने भी फ्लैट तबला बजा के ही लिया है और सब कुछ मैं तबला बजा के ही मैंने मेरी ये की है। लेकिन आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्लासिकल में बहुत बड़ा कंपटीशन है और पूरे इंडिया लेवल के लोग क्लासिकल में बजाते हैं। और क्लासिकल में एस्टेब्लिश होने के लिए आपको वैसे ग्रुप्स के साथ रहना पड़ेगा, वैसे आपकी संगत होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और 24 घंटे आपको उसी में रहना चाहिए। तो आप क्लासिकल प्लेयर बन सकते हो और आपको बहुत तगड़ा रियाज। हेलो, ओके सर, नाउ यू मेंशन कि लाइट म्यूजिक, व्हाट इज लाइट म्यूजिक? क्लासिक भी गजल सिंगर्स हैं, आपको कंटिन्यूसली, सबसे पहली बात मतलब आपको गजल सिंगिंग या फिर फिल्मी गाने हैं तो क्लासिकल फील्ड और ये लाइट म्यूजिक, ये आपको ये दिमाग में ये दो आपको पार्टीशन करने पड़े। क्योंकि क्लासिकल में 2 और 2 4 होता है, लेकिन लाइट म्यूजिक में 2 और 2 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे हम लोग लाइट म्यूजिक में तो ये चिक धाधा भी आपको बजाना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है और ये नहीं है। जैसे सारे ठेके ही अलग होते हैं, उनका पैटर्न ही अलग होते हैं। तो कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ठेके सीखने पड़ेंगे और ये सब कुछ करते हुए आपको फील रखना चाहिए, फील। क्योंकि
होता है ना, तैयारी तो तैयारी सभी लोगों के पास होती है, तैयारी से बहुत से लोग बजाते हैं, आप रियाज करेंगे तो आप बहुत तैयार बजा सकते हैं, लेकिन जो फील होता है तो जो फील होता है वो बहुत जरूरी होता है, तो वो फील से आपको बजाना पड़ता है सारी चीजें। और अलग अलग ठेके हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, फिल्मी गाने बजाने का तरीका अलग होता है, क्लासिकल कंसर्ट बजाने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी आपको चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक एक लग्गी, अगर आपको लग्गी भी बजानी है ना, तो एक एक लग्गी की प्रैक्टिस आपको 6-6 महीने पर करना पड़ती है। ये लग्गी है, ये बजती है ऊपर, इस लय पे बजती है, लेकिन इसके ओरिजिनल बोल है तक कीट था धाती तीन तक कीट था धाती तीन। तो ये ओरिजिनल बोल है, इसके आपको 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल बजाओगे, उसके बाद में आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि ये स्टेज पर उस पंच से आप बजा सकते हो। और ये करने के बाद दूसरा चैलेंज ये है कि आपको अलग अलग ग्रुप्स के साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है। सिंगर्स को फोन करने पड़ते हैं, गजल सिंगर्स को, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है, क्योंकि लाइन में कम से कम 50 तबला प्लेयर आपके एक ही सिंगर के पीछे पड़े होते हैं। तो उसमें से आपको अच्छा रिलेशन रख के, अच्छा बजा के ये सब मेंटेन करना होता है। उसी के साथ साथ जब लाइट म्यूजिक की बात आती है तो कंट्रोल, जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी चल रहा है कोरोना में, वो सोशल डिस्टेंसिंग लाइट प्लेइंग में भी बहुत जरूरी है कि एक तबला प्लेयर जब बजाता है तो 20 साल तबला सीख के उसने जितने भी कायदे टुकड़े सीखे होते हैं उसे बस एक ही गाने में बजाने होते हैं। ऐसा नहीं करना होता है कि तबला जो है वो एकम्पनी इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर आप गाने के साथ बजा रहे हो तो गाना मेन है, गाना सबसे जरूरी है। गाने वाला जब आपको थोड़ा सा समय देगा और जगह देगा उधर ही बजाइए, बीच बीच में आपके सारे पिकअप टुकड़े और सब कुछ बजा के गाने वाले को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है टुकड़ों का, वो बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ रियाज और पीआर, पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी है, तो आप अच्छा काम कर सकते हो। ये सारे चैलेंजेस है एज अ प्रोफेशनल तबला प्लेयर। ओके, नाउ सर, अगर तबला प्लेयर बनना है तो जैसे अदर इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर जो गैजेट्स आते हैं दे आर वेरी कॉस्टली, तो एक तबला के साथ का जो कॉस्ट फैक्टर है, व्हाट इज दैट कॉस्ट फैक्टर? क्योंकि गैजेट्स का कॉस्ट फैक्टर होता ही है। तो तबले के साथ तो कॉस्ट फैक्टर का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तबला बेसिकली इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है। तबले की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और बस तबले में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तबले में सिर्फ एक ही चीज़ का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको करना ही पड़ता है, अदरवाइज आपका तबला बजेगा ही नहीं, और वो इन्वेस्टमेंट है रियाज, रियाज और रियाज। आपको बहुत रियाज करना पड़ेगा, और आपको अपने आप के साथ में ईमानदार रहना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा, आईने में खड़े रह के बजा के, कि मैं कैसा बजा रहा हूँ। लोग तारीफ करेंगे वो बात अलग है, लेकिन खुद से हमेशा सवाल पूछते रहो कि मैं किस लेवल पे बजा रहा हूँ, मैं कुछ गिमिक्स तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ट्रिक्स तो नहीं कर रहा हूँ। पहले अच्छा बजा लो, पहले अच्छा रियाज कर लो, अच्छा बजा लो, उसके बाद में ट्रिक्स करो, गिमिक्स करो, लेकिन बजाना पहले बहुत जरूरी है। सर, नाउ जो आपने बताया कि खुद को पूछना एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड करते हो, दैट वाज अ वेरी हम्बल थिंग टू टेल आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो। एंड ये चीज जो अभी आपने बोली दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स, दैट इज जो भी डांसिंग में बोलिए, म्यूजिक में बोलिए, सिंगिंग में बोलिए। मेनी ऑफ द टाइम आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, दे डोंट आस्क देमसेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ, हैव आई डन द प्रैक्टिस, but they want to perform. What is your call on that? विदाउट Hello. There is some issue. Hello. Hello. हेलो, Voice is breaking. You will have to repeat. यस, हाँ, विदाउट प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस किए स्टेज पर बजाना, विदाउट सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने जैसा है। आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है।
और कभी भी आपको नीचे देखना पड़ सकता है जब अच्छा गाने बजाने वाले आपके सामने आएंगे और आप कोई चीज़ बजाने जा रहे हो और वो पंच से नहीं बज रही है और वो जैसी बजनी चाहिए वैसे नहीं बज रही है, तो आपको बहुत शर्म आएगी। और वो लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि आप आपके दिमाग में है और आपके हाथ में नहीं है। तो दिमाग की चीज़ हाथ में आने के लिए बहुत रियाज करना बहुत ज़रूरी है। लाइक यू सेड दिस थिंग, इसके अंदर मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है इसके अंदर ये जो पार्ट है उसके अंदर पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? जो स्टूडेंट सीख रहे हैं आ, उसके अंदर पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए ये चीज के लिए? देखिए एज अ अगर पूछेंगे तो फोर्स तो कभी नहीं करना चाहिए कि तो ये योर मत वॉइस करो, इज ब्रेकिंग। ये करो। ये हेलो। तो वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, ये आ रही है? हेलो। हेलो। तो हेलो। ब्रेकिंग। हेलो। हेलो। एक मिनट, आई हेलो। जस्ट एंड दिस। हेलो, यू आर एबल टू हियर मी? या हेलो। हेलो। देयर इज a network. हेलो। हेलो। आवाज कैन यू सी मी?